Hello students, I'm a science teacher. Today I'm explaining an interesting chapter about heat flow and temperature. In this chapter you will learn introduction, heat as form of energy, expansion, vacuum and thermos flask. List 5 sources of heat you see in your everyday life. Sun, earth, chemical energy, heat energy और atomic energy. कुछ भी ऐसी चीज जिससे हमें एनर्जी मिलती है. Now introduction. We stand in sunlight, we feel hot. If we will place our hand near the vessel of boiling water, we feel heat. When we switch on electric heater, it makes the room warm. What do you feel hot? What is heat? What do you measure the amount of heat? How does body gain or lose heat? We shall try to find answer to these questions in this chapter. Heat क्या है? Heat is a form of energy. Have you stirred hot tea or milk with stainless steel spoon? Next time do you this, leave the spoon in the hot liquid. अब किसी गर्म चीज में आप चम्मच को छोड़ दीजिए. अब छोड़ देंगे हिलाते हुए चम्मच को वहीं तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे आपकी जो स्पून है वो भी गर्म हो गई है. The edge of a spoon would have got little warm. Why did spoon become warm? अब वो चम्मच गर्म क्यों हुई? Where there is difference in temperature between two bodies in certain types of energy, flow between them, this energy is called heat energy. When this heat energy flow into a body, it warms the body, while if it is flow out of body, it cools the body. In other words, the hot body loses heat energy while cold body gains. जो हॉट बॉडी है वो अपनी एनर्जी को छोड़ेगी. वहीं जब उसमें हमने हमारी चाय गर्म थी उसमें हमने चम्मच डाली, चम्मच से उसको हिलाया, हमारी चाय गर्म थी, चम्मच ठंडी थी. अब गर्म चीज ने अपनी गर्मी छोड़ी और ठंडी चीज ने उसे पकड़ लिया. While the cold body gains energy, the point to note is that left to itself heat energy flow from region to higher temperature to region of lower temperature and never in the direction. Heat flow continuous till temperature of both hot and cold body become the same, whose value will be same where between temperature of hot body and cold body. और तब तक ये हीट का आदान प्रदान चलता रहेगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर समान ना हो जाए. Learning by doing to show that heat energy flow from hot body to cold body. Coin, tong, boiling water, cold water and glasses. अब ये एक्सपेरिमेंट आप खुद करके देखेंगे. Now friction between two surfaces produce heat. Rub your hands. हाथों को मलिए. इस तरह से अब हाथों को मलेंगे तो आप देखेंगे आपके हाथ गर्म हो गए. जैसे सर्दियों में हम यूं करते हैं ना हाथ गर्म करने के लिए, बिल्कुल वैसे. वो इसलिए क्योंकि हम अपने हाथों को रगड़ रहे हैं. रगड़ने की वजह से हमारे हाथों के बीच में फ्रिक्शन पैदा हो रहा है जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? हीट एनर्जी. Rub your hands, you will able to feel heat. It's produced by friction between two first surfaces of your hand. The friction between a meteor and produce air so much heat that is burn meteor completely. A burning meteor seen in the night sky is commonly called shooting star. Similarly, when a rocket is launched, जब रॉकेट लॉन्च होता है ना तो ऊपर को जाता है और नीचे को कितनी सारी एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है. इट एनकाउंटर्स फ्रिक्शन बिटवीन द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड द सरफेस ऑफ रॉकेट. दिस जनरेट ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट. जब एक रॉकेट उड़ेगा तो कितनी हीट छोड़ता है, कितनी एक्सेस हीट छोड़ता है. हीट एंड टेम्परेचर. इफ यू प्लेस अ वेसल फिल्ड विद मिल्क और लाइटेड स्टोव, द मिल्क गेन हीट एंड टेम्परेचर राइज. उबलने लगेगा दूध या पानी जो भी आप रखेंगे. Do heat the temperature mean the same thing or other the different terms? Although heat and temperature are related, they are different concepts. Heat means the total internal energy contained the matter. It depends on speed of molecule. जितना ज़्यादा गर्म करेंगे उतना ज़्यादा ये मॉलिक्यूल इधर उधर भागने लगेंगे. For example, heat is certain amount of water in the some energy present in all molecules. Temperature tells how hot or cold. Heat energy is sum of energy present in the all molecule of water container A and B. Which of two will have more heat? जिसके मॉलिक्यूल्स या बोल सकते हैं जिसमें ज्यादा बबल्स उठ रहे होंगे जोर जोर से वो ज्यादा गर्म होगा और जिसके कम उठ रहे होंगे वो कम उसमें बबल होंगे. फिर हीट एनर्जी.
How can we differentiate between container of cold water and container of hot water? By touching. अब आप गर्म ठंडे का पता कैसे लगा सकते हैं? या तो आप उसमें से उठती हुई भाप को देख लीजिए, या उसको टच करके फील करके बता सकते हैं कि ये गर्म है और ये ठंडा है. We say that the hot water container has higher temperature than the cold water. Higher temperature, lower temperature. एक हीट हो गया, सॉरी एक कोल्ड हो गया और एक हमारा हॉट हो गया. ऑल्सो व्हेन वी फील फीवर, जब हमें बुखार होता है तो हमारी बॉडी क्या होती है, गर्म हो जाती है. द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज कंडीशन of body which determine the direction of flow. The heat when body is brought in contact with another body, heat is a form of energy. Energy cannot be created nor destroyed. Energy को ना create कर सकते हैं ना destroy कर सकते हैं. Thus heat energy can also be converted into other form of energy. पर आप एक एनर्जी को, एक हीट एनर्जी को दूसरी टाइप ऑफ हीट एनर्जी में चेंज कर सकते हैं. आप इसको क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं. When does the transfer of heat take place? अब जो हमारी हीट है वो एक से दूसरे में किस तरह बदलती है? ट्रांसफर ऑफ हीट अकर्स फ्रॉम रीजन हायर टेम्परेचर टू लोअर. जो हमारी हीट है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर जाती है. दैट इज वाई हीट फ्लो फ्रॉम एन वन ऑब्जेक्ट टू अनदर. इसीलिए हम बोल सकते हैं कि पहले हमारे बर्तन में ठंडा पानी था, हमने उसे गैस पे रखा, गैस की हीट बर्तन में गई और वो पानी गर्म होने लगा. यानी गैस ने अपनी हीट बर्तन को दी और पानी उबलने लगा, हीट ट्रांसफर हुई. When a tumbler is filled with hot water, hot energy from the tumbler surrounding air in which at the lower temperature. The transfer of heat continues until hot water is surrounding air have the same temperature. Similarly, cold glass of water, जब आप ठंडे पानी में ठंडा मिलाएंगे तो ठंडा हो जाएगा, और जब एकदम से ठंडे पानी में हम गर्म पानी मिला देंगे तो वो अपने आप को बैलेंस करेगा, ना वो गर्म होगा ना ठंडा, वो थोड़ा सा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा. Let us examine another example. If hot metal rod is immersed in cold water, the heat will flow from the metal rod to the water until both water and rod reach the same. और तब तक वो वैसे नहीं हो जाएगी जब तक कि वो सेम टेम्परेचर पे ना पहुंच जाएगी. गर्म पानी में डालेंगे आप ठंडी रॉड तो वो तब तक टेम्परेचर उनका सेम नहीं हो जाएगा, वो एक सी रहेंगी. हाउ डज हीट ट्रांसफर? हीट ट्रांसफर कैसे होती है? द फैक्ट दैट हीट कैन बी ट्रांसफर्ड of a material is well known. We all have experienced the phenomenon. Whenever we hold a metallic spoon over the flame, the spoon will become hot. अब हम किसी गर्म बर्तन के ऊपर गर्म चम्मच को रोक के रखें या हिलाते हुए गर्म बर्तन के ऊपर ही छोड़ दे तो हम क्या देखेंगे, जो बर्तन के अंदर की हीट है वो चम्मच पे ट्रांसफर हो गई. वी मिक्स अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर विद बॉइलिंग वाटर. जैसा मैंने अभी नीचे आपको बताया कि आप ठंडे पानी को गर्म पानी में लाइए. वी फील हॉट व्हेन वी स्टैंड अंडर द सन. द हीट इज ट्रांसफर्ड और प्रोपोगेट इन थर्ड वे, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. जो हीट है वो तीन तरह से पास होती है किसी दूसरी चीज में. कन्वेक्शन यानी अंदर ही अंदर मॉलिक्यूल घूम रहे हैं. कंडक्शन, यहाँ हीट नहीं पहुंच रही है या प्लास्टिक का कुछ लगा हुआ है जो उसे रोक रहा है हीट एनर्जी को पास होने में, वो आ गया हमारा कंडक्शन. और गैस जो हम पास होके दूसरी चीज को गर्म कर रही है वो हमारा क्या है, रेडिएशन. फर्स्ट वन इज कंडक्शन. कंडक्शन अकर व्हेन टू ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर आर कॉन्टेक्ट विद ईच अदर. यानी दो अलग अलग टेम्परेचर की जो चीजें हैं जब एक दूसरे को क्या करती हैं, कॉन्टैक्ट में आती हैं. व्हेन अ कोल्ड मेटल रॉड इज प्लेस कॉन्टैक्ट विद हॉट फ्लेम. जब आप ठंडी छड़ को क्या करेंगे, कैंडल के फ्लेम के नीचे रख देंगे. हीट फ्लो फ्रॉम द मेटल रॉड thereby increase the temperature of metal. अब ये यहाँ से गर्म होना शुरू करेगी, यहाँ से ये जो हीट है वो पास होती 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 इधर आ जाएगी और ये पूरी रॉड गर्म हो जाएगी. हीट इज फार एंड ऑफ रूलर बाय मीनिंग द बर्नर. Bunsen burner, it is noticed that after some time thin one drop as wax. अब ये पे आपने क्या किया है, वैक्स से या मोम से ये पिन्स यहाँ पे लगाई हुई हैं. जब ये हीट यहाँ ट्रांसफर होगी तो वन बाय वन ये गिरने लगेंगी. पहले हीट यहाँ ये गिरी, फिर ये गिरी, फिर ये गिरी, सारी जैसे जैसे हीट पास होगी ये एक एक करके गिरना शुरू कर देंगे. इससे आपको पता चलेगा कि हीट जो है वो अपने आप को आगे पास करती है. From this activity, it is clear that heat travels the hot end and ruler cold without the actual visible movement. Learning by doing. Take a frying pan and put the tripod stand with the burner behind. तो आपने इस पे क्या किया, आग जलाकर एक पैन रख दिया. Now place a metal plate over the frying pan. You will notice that while heat produced
frying pan as in figure the metal around warm. जब आप इसे गैस पे रखेंगे बर्तन को तो आप देखेंगे कि ये बर्तन भी गर्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि हीट पास हुई। गैस ने अपनी हीट किसको? इस बर्तन को पास कर दिया और ये गर्म होना शुरू हो गया। द सब्सटेंस दैट कंडक्ट हीट इज कॉल्ड कंडक्टर। जो हीट को क्या करते हैं? आगे को पास करते हैं। एंड द सब्सटेंस डू नॉट कंडक्ट हीट, जो हीट को पास नहीं करते, रोकते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे इंसुलेटर। और मेटल्स, जितनी भी मेटल की चीजें हैं वो क्या है? गुड कंडक्टर। वूल, वुड, कॉक, पेपर, ये क्या है? बैड कंडक्टर। ये सब हीट को रोकते हैं, तो ये है हमारे बैड कंडक्टर। हाउ डज इट हैपन? You know that matter is made up of molecules. In a solid, the molecules are closely arranged. When a solid heated molecules begin to vibrate faster, you experience the heat transfer of conduction. यानी मॉलिक्यूल्स जो है, अंदर के जो कण हैं, वो जोर जोर से हिलना शुरू कर देते हैं। तो उससे आपको पता चलता है कि हीट कितनी जल्दी जल्दी पास हो रही है। जैसे देखिए, हीट की एक लेयर यहाँ आई, ये हिलने लगे जोर जोर से। फिर इन्होंने अपनी हीट ऊपर वाले को पास करी, ये हिलने लगे। इन्होंने अपनी हीट ऊपर वाले को पास करने लगी और ये जोर जोर से शेक करने लगे, हिलने करने लगे। When a hotter object come in the contact of colder object, the faster moving molecules of hot object collide with slow moving molecules of cooler object. अब क्या होगा? जब आप ठंडा करेंगे तो क्या यही मॉलिक्यूल्स जो होंगे, वो उनकी जो हीट है वो धीरे धीरे सेटल डाउन होने लगेगी। As they collide, the faster moving molecules give up some of their energy. The slow moving molecules, as the slower moving molecules gain heat, they begin move fast. जैसे ही आप इन्हें दोबारा गर्म करेंगे, दोबारा जोर जोर से मूव करना शुरू कर देंगे। These continuous until heat is spread, और तब तक होते रहेंगे जब तक कि जो हीट है वो evenly spread पूरे बर्तन में नहीं हो जाएगी। The colder object and both object reach the same temperature. और तब तक होती रहेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर, जो तापमान है, वो सेम ना हो जाए। एज द मॉलिक्यूल गेन एनर्जी दे मूव फास्टर। जैसे जैसे जो इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे? एनर्जी को गेन करेंगे, एनर्जी को पकड़ेंगे, वो जोर जोर से मूव करना शुरू कर देंगे। अब आता है एक्सपेंशन। जो हीट है वो किस तरह से एक्सपैंड होती है? Suppose a number of children are standing in the corner of hall. They are moving around a little, talk to each other. वो धीरे धीरे बात करना शुरू करें किसी हॉल के कोने पे खड़े हुए। सडनली म्यूजिक इज स्विच ऑन, द चिल्ड्रन स्टार्ट डांसिंग। और एकदम से आप म्यूजिक ऑन कर दें, वो बच्चे एकदम से नाचना शुरू कर दें। नेचुरली दे विल स्प्रेड आउट मोर, ऑक्यूपाई एंड लार्ज पार्ट ऑफ। धीरे धीरे वो क्या होंगे? पूरे हॉल को नाचते हुए घेर लेंगे। बिल्कुल वैसे ही हीट जो है वो अपने आप को एक्सपेंड करती है, एक जगह से शुरू होती है और धीरे धीरे गर्म होती होती सब जगह फैल जाती है। When we heat a substance, the movement of its molecule increase. This increase the average distance between molecules. There is a space occupied molecules, that is the volume of substance increase. We say that cause expansion, यानी किसी चीज का फैलना। So expansion of heating. Read yourself. As the rod expands, it rolls over the pencil and turns it. Thus, in turns, rotate the pointer. The more you heat the rod, the more of pointer will turn. The show expansion depends on temperature. यानी जो विस्तार है, किसी चीज का फैलना है, एक्सपेंशन है, वो किस पे डिपेंड करता है? जितना ज्यादा आप उसको गर्म करेंगे। Expansion around us. The expansion of solid can be used put atomic fire alarm system. In fact, different solid expands different amount of heating. The alarm continues two metal strip, one iron and one brass. Similarly bottled together, brass expands more than iron on heating. When this bimetallic stripe heated because of fire, it bends one side of iron. It is band and circulate electric bell completely. They starts ringing the alarm. जब फायर अलार्म बजता है तो क्या होती है? आयरन स्ट्रिप क्या होती है? एयर जब एक्सपेंड होती है तो वो धीरे धीरे मुड़ जाती है और अलार्म बजने लगता है। द मेटल कैप्स ऑन ग्लास बॉटल कैन बी लूजन एंड पोरिंग हॉट वाटर, मेटल कैप, द मेटल कैप एक्सपेंड। अब आपको किसी चीज का ढक्कन खोलना है तो कहते हैं ना, उस पर गर्म पानी डालिए, वो एक्सपेंड हो जाएगी, अपने आप को लूज छोड़ देगी और आप उसको इजीली खोल देंगे। एट मैनी प्लेस एक्सपेंशन कॉजेज प्रॉब्लम। वही एक्सपेंशन यानी गर्म होकर फैलना चीजों का क्या हो जाता है? कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। रेलवे ट्रैक्स ओवर विच टर्न्स रिन आर मेड आयरन।
गर्मियों के दिनों में क्या होता है, हमारे रेलवे ट्रैक्स जो हैं वो ज़्यादा हीट की वजह से फैलना शुरू कर देते हैं। तो रेल की पटरियाँ इधर-उधर हो जाती हैं, एक्सपैंड हो जाती हैं, जिसकी वजह से सीरियस एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। In steel bridge handling made of rest of roller with enough space provide the expansion during summer. वहीं कुछ ब्रिजेस हैं जो गर्मियों के समय जो लोहे के बने हैं, गर्म होके वो भी एक्सपैंड हो जाते हैं, ज़्यादा लूज से लगते हैं, ऐसा लगता है हिलने वाले हिल रहे हैं बहुत ज़ोर से। जब उनसे कोई कार या बस ट्रक क्रॉस हो, बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलते हैं, वो किस लिए, एक्सपेंशन की वजह से गर्मियों के दिनों में, और ऐसा लगता है कि अभी हिल हिल के गिर जाएंगे। इन समर इलेक्ट्रिक केबल बिटवीन टू पोल्स एक्सपेंड द सैक, इन विंटर दे कॉन्ट्रैक्ट, और वहीं जब ठंड आएगी ये वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। इफ केबल्स आर लेड इन समर, वहीं जो तारे हैं गर्मियों के दिनों में ढीली होकर लटक जाती हैं, वहीं जब सर्दियों के दिन आते हैं तो वापस कॉन्ट्रैक्शन में आ जाती हैं या सख्त हो जाती हैं। ऑब्जर्व कंडक्शन ऑफ हीट, होल्ड अ मेटल स्पून इन योर हैंड एंड tug it over into very hot water, what happens, you will soon drop the spoon। किसी गर्म पानी के ऊपर आप चम्मच को लेके लगातार हिलाइए, थोड़े टाइम बाद क्या करेंगे, जो हीट है वो चम्मच तक पहुंच जाएगी और आप उस चम्मच को छोड़ देंगे। It is water is a good conductor of heat। Fill test tube with ice cold water and place a piece of ice in it। ठंडे पानी से भर दीजिए और बर्फ का एक टुकड़ा भी डाल दीजिए। Keep the ice at the bottom by placing marble। अब आइस को आप क्या करेंगे, मार्बल के टुकड़े के नीचे डालेंगे। नाउ हीट द वाटर फ्रॉम द टॉप अ टेस्ट ट्यूब अंटिल इट्स बिंग बॉयल। अब इसको गर्म करना शुरू कर दीजिए जब तक ये बॉयल ना हो जाए। Does ice melt completely when the water begins to boil? Does it spread quickly in water? Is water good conductor of heat? Good and poor conductor। अब कौन से अच्छे कंडक्टर है और कौन से पुअर कंडक्टर है? If you feel matter and wood object on a winter morning, the metal feels colder। Why? मेटल की चीजें सर्दियों में ज्यादा ठंडी क्यों लगती है? On a winter morning, both metal and wood have a lower temperature than your body। क्योंकि इनका जो टेम्परेचर होता है मेटल का वो ज़्यादा लोअर या ज़्यादा तापमान गिर जाता है, इसलिए ज़्यादा ठंडी हो जाती है। So when you touch these objects, the heat energy from your body flow into them, the metal feels colder because conduct takes away heat energy from your hand much faster than the wood। दिस इज बिकॉज मेटल आर गुड कंडक्टर। इसीलिए बोला जाता है जितनी भी मेटल की चीजें हैं वो गुड कंडक्टर है, वहीं वुड, ग्लास और प्लास्टिक क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पुअर कंडक्टर आर गुड इंसुलेटर ऑफ हीट। Materials are conductor heat poorly, not transfer heat well। Such materials are good heat insulator। In a plastic spoon, keep hot cup of milk, you will find they will hardly transfer to heat। अब किसी प्लास्टिक की चम्मच से आप कोई गर्म चीज हिलाएं तो आप क्या करेंगे, प्लास्टिक तो बहुत अच्छा कंडक्टर है, नहीं है हीट का, हीट को पास नहीं होने देता, तो प्लास्टिक की चम्मच हमारी गर्म नहीं होंगी। दिस इज वाई मैनी टाइप्स ऑफ मेटल वेसल आर फिटेड विद हीट इंसुलेटिंग हैंडल। इसीलिए हमारे जो फ्राइंग पैन होते हैं उनके जो हैंडल होते हैं वो इंसुलेटेड प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, जिसलिए जिससे हम खाना उसमें गर्म करें तो जो हीट है वो हैंडल में ट्रांसफर नहीं हो पाती। जो हीट है वो हमारी पैन तक ही रहती है और हमारे हैंडल जैसे होते हैं कूल वैसे ही रहते हैं, हम उनको इजीली पकड़ पाते हैं। Knowledge those insulating material are extremely important for certain profession। Special insulating material are used to make jacket for firefighter and race car driver। Air is a good heat insulator। Seal and polar bear that live in cold Arctic region have a thick fur। इनकी मोटी खाल होती है क्योंकि ये अपनी अंदर की जो गर्मी होती है उसको अपने अंदर ही बचा कर रखते हैं। इनकी जो स्किन है वो अच्छा काम करती है किसका, हीट कंडक्टर का। अब आता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू अ फ्लूइड, गैस और लिक्विड फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू रीजन ऑफ लोअर। ये भी हायर से लोअर की तरफ जा रही है। लिक्विड एंड गैसेज आर फ्लूइड बिकॉज बोथ फ्लो। नॉलेज डोज वूलन गारमेंट्स। अब जितनी भी वूलन चीज़ें हैं वो गर्म सर्दियों में हमें गर्म रखती हैं, हमारी बॉडी टेम्परेचर को वार्म रखती हैं। लर्निंग बाय डूइंग। Fill a wide mountain bottle with tap water. Fill frying pan with some water on a stove carefully। Place the bottle in pan and light the stove। When the water of pan begins to boil, put off the stove। Drop a stick of potassium permanganate in the bottle। Observe what happened. A small stream of potassium permanganate rise upward the short distance
and loop downwards gradually. The heat is spread towards through convection. अब आपने क्या किया, इसको गर्म किया, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट की एक रॉड डाल, धीरे धीरे आप क्या करेंगे, जैसे ही उसको हीट मिलेगी कन्वेक्शन की वजह से ये क्या हो जाएगी, एकदम मेल्ट हो जाएगी. दिस इज रीड योर सेल्फ. व्हेन अ लिक्विड और गैस हीटेड एक्सपेंड, जब आप किसी लिक्विड को या गैस को गर्म करते हैं तो वो फैलना शुरू कर देती है. इट बिकम्स लाइटर एंड मूव्स अपवर्ड, क्योंकि वो हल्की हो जाती है और इधर उधर फैलने लगती है. द कूलर heavier fluid from surrounding rushes to take place. They give rise to convection current through which energy flow in liquid or gas. Convection current gives rise to breeze of coastal area. Convection current किसको, ब्रीज एरिया को क्या देता है, कोस्टल एरिया को ब्रीज देता है. अब आते हैं हमारे लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज. द पीपुल लिविंग इन कोस्टल एरिया, जो समुद्र के किनारे पर रहते हैं, ड्यूरिंग द डे लैंड गेट हीटिंग, दिन के समय जो है उनका जो लैंड है वो गर्म होता है और रात के समय वो उतना ही ठंडा हो जाता है. द कूलर एयर फ्रॉम सी रशेस टूवर्ड द लैंड टेक्स प्लेस. द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड्स मूव टूवर्ड द सी कंप्लीटली साइकिल. द एयर फ्रॉम सी कॉल्ड इज सी ब्रीज. वहीं द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन लैंड, so the cool air from land moves toward the sea. This is called land breeze. देखिए, ड्यूरिंग द नाइट लैंड कूल मोर क्विकली. दिन के समय जो है, रात के समय जो लैंड है वो जल्दी ठंडे हो जाते हैं. So hot air above the sea rise up and cool air moves from land towards the sea. This is called land breeze. क्या होगा, दिन के समय जो गर्म हवाएं हैं जो इधर की ओर जाएंगी और ठंडी हवाएं हमारे लैंड की तरफ आएंगी तो ये इसे गर्म कर देंगी. वहीं रात के समय जो ठंडी हवाएं हैं वो समुद्र की ओर जाएंगी और समुद्र से गर्म हवाएं लैंड की ओर जाएंगी जो इसे क्या कर देंगी, ठंडा कर देंगी. अब आता है रेडिएशन. In the most of space between the sun and earth, there is a vacuum and three partially no medium in the space, but still we receive heat from sun. अब हम लगातार सूरज की रोशनी से हमें हीट मिलती है. Here heat transfer does not occur by conduction or convection. अभी हमें किसी सोर्स के जरिए तो नहीं मिल रही कि सूरज और पृथ्वी के बीच हमें कोई चीज जलानी पड़ रही है, आग लगानी पड़ रही है तो सूरज की रोशनी हमारे तक पहुंच रही है, नहीं. वो एनर्जी हमारे किस थ्रू पहुंच रही है, सूरज की रोशनी पृथ्वी तक रेडिएशन के थ्रू. When we stand in front of wire we feel hot. In case of also heat transfer. पता है आपको रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है. रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. रेडिएशन का प्रोसेस होता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट को पहुंचना. विदाउट हीटिंग मीडियम बिटवीन, उनके बीच में कोई भी ऐसा मीडियम नहीं होता जो दोनों चीजों को गर्म कर रहा है. रेडिएशन इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी. रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं, रेडिएंट एनर्जी. Heat is developed when the radiant energy falls on matter and absorbed by it. The amount of energy absorbed by an object depends on its color. डार्क कलर को ज़्यादा रेडिएशन से ज़्यादा हीट ऑब्जॉर्ब होगी, जितनी लाइट चीज़ होगी वो उतना ही रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगी. जैसे देखिए इंफ्रारेड लाइट, इनविजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट, सारी चीज़ें जो है हमारी पृथ्वी क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है. लर्निंग बाय डूइंग, स्टडी रेडिएशन फ्रॉम डिफरेंट सरफेस. ब्लैक सरफेस, जितनी डार्क कलर की चीज होगी उतना ज्यादा रेडिएशन ज्यादा होगा, जितनी कम होगी लाइट कलर की होगी उतना रेडिएशन कम होगा. ये यही एक्सप्लेन किया गया है रेडिएशन को. वैक्यूम ऑफ थर्मोफ्लास्क. थर्मोफ्लास्क इज यूज्ड कॉल्ड डेवर एंड वैक्यूम फ्लास्क इज यूज्ड टू कीप हॉट और कोल्ड. फ्लास्क में जब थर्मस में आप गर्म चीज डालते हैं वो गर्म रहती है, ठंडी डालते हैं वो ठंडी रहती है. दिस फ्लास्क इज डबल लेयर्ड विद वैक्यूम इन बिटवीन लेयर. ये डबल लेयर होती है जिसके बीच में कुछ इस तरह की लेयर होती है, बीच में ना इनके वैक्यूम होता है जो गर्म चीज को गर्म और ठंडे को ठंडा रखता है. आफ्टर क्रिएटिंग वैक्यूम ऑफ बोथ सील्ड, द वैक्यूम बिटवीन टू लेयर स्टॉप हीट ट्रांसफर. अब इनके बीच में जो वैक्यूम होती है वो हीट ट्रांसफर करने को रोकती है, इधर से उधर पास करने, क्योंकि हीट तो पास होती है एक जगह से दूसरी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में. तो ये फ्लास्क के बीच में जो वैक्यूम होती है वो क्या काम करती है, हीट को ट्रांसफर करने का काम रोक देती है. इसलिए आप इसमें गर्म चीज डालेंगे तो वो गर्म और ठंडी डालेंगे तो वो ठंडी रहेगी. इट्स इनर सरफेस इज हाईली सिल्वर्ड. जैसे सिल्वर चीज में देखा हमने टेम्परेचर क्या है, कम होता है, तो इसका जो अंदर का जो एरिया होता है वो सिल्वर कलर का होता है क्योंकि इसमें रेडिएशन कम होती है, ये इंसुलेट कम करता है. यूनिट ऑफ हीट, नॉन एसआई एंड एसआई. पहली नॉन एसआई,
Non-SI unit of heat is calorie. This is older heat. The quantity of heat required to raise the temperature of 1 gram to water by 1 degree Celsius called calories. The unit calories is denoted by cal. Cal से use करते हैं. The calories is smaller unit, quite often a bigger unit called kilocalories. K cal से denote करते हैं. 1 किलो कैलोरीज बराबर होती है 1000 कैलोरी के. SI यूनिट क्या होती है? जूल होती है. 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल के बराबर. Thus, the raise of temperature of 1 gram water by 1 degree point 4.183 joule of heat required. फिर आता है हमारे temperature. When you touch an object, it may appear hot and cold. When you sip out of cup of tea, it appears hot. When you take ice cream and cold, ठंडी चीजें खाएंगे तो ठंडा महसूस होगा, गर्म चीजें पियेंगे तो गर्म. What makes things appear hot and cold? It depends upon direction. When heat flow from one body to another, when heat flow from object to our body appearance hot. An object appear hot if its temperature is higher than our body. On other hand, an object appear cold if its temperature is lower than our body. The degree of hotness and coldness of an object on some selected scale is called temperature. गर्म और ठंडा आप किस तरह से पता लगाएंगे? वो क्या है? हमारा टेम्परेचर से. टेम्परेचर इज मेजर्ड यूजिंग डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर. टेम्परेचर जो है वो हम थर्मामीटर से नापते हैं. अब टेम्परेचर दो तरह से नापा जाता है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस. पहला आता है फ़ारेनहाइट स्केल. दिस टेम्परेचर स्केल इज नेम्ड आफ्टर डैनियल गैब्रिएल फ़ारेनहाइट. अब फ़ारेनहाइट किसके नाम पर रखा गया है? डैनियल गैब्रिएल फ़ारेनहाइट के नाम पर, जिन्होंने 1724 में इसे आविष्कार किया था. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 32 और बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री. फिर आता है सेल्सियस स्केल. अराउंड 1743 में एंड्री सेल्सियस ने इन्वेंट किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पे इसको रख दिया गया. फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर 0 डिग्री और बॉइलिंग इज 100 डिग्री. क्लिनिकल थर्मोमीटर, जिससे हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं. When you feel sick, you may use clinical thermometer to measure your body temperature. The commonly used thermometer is made up of narrow tube capillary of thick glass, जिसमें यहाँ मरकरी भरी होती है, जो बॉडी टेम्परेचर से जब हम यहाँ उसे आर्म होल में लगाते हैं या अपने माउथ में लगाते हैं तो हमारा ये जो मरकरी है वो धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है और हमें पता चलता है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है. The scale in a clinical thermometer expand over few degree in either the normal body temperature is 37. Most thermometers are marked indicate a small change of 0.2 degrees centigrade. There is a constrict of kink in near tube, the bulb. This kink has made ensure that mercury इसके बीच में भरा होता है. जैसे ही आप इसे बॉडी के कांटेक्ट में लाएंगे, अगर आपको फीवर है तो जो मर्करी है उसका जो लेवल है वो इंक्रीज होने लगेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना बुखार है. फ़ारेनहाइट वाज जर्मन साइंटिस्ट. He invented the mercury in glass thermometer in 1724, designed the Fahrenheit scale in temperature scale used even today. Before using wind, wipe the thermometer in antiseptic solution using cotton swab. एक थर्मोमीटर को दूसरी बार यूज करने के लिए आप उसको वॉश करके इस तरह से करके यूज करते हैं. Give it firm jerk of lower mercury level below 35. Place the thermometer below tongue about 2 minutes. Read thermometer by holding horizontally in the line of sight. The normal body temperature is 37 degree. फर्स्ट एक थर्मोमीटर, फिर उसे प्लेस करिए अपने माउथ में. फिर यहाँ पे इस लाइन में टेम्परेचर देखिए कि आपका बॉडी टेम्परेचर कितना है. टेम्परेचर स्केल. वी मेजर द टेम्परेचर इन फॉलोइंग 3 स्केल: सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट. ये सारे स्केल दे रखे हैं कि कितना कितना किसके नाम से यूज हुआ है और कितना आपका टेम्परेचर होना चाहिए. Celsius scale. The Celsius scale temperature was designed by Andre Celsius in 1701 and 1744. On this scale, temperature is described in 0 degree Celsius. में. The lower fixed point, ice point of Celsius scale is taken 0 degree and higher fixed on 100. Higher कितना है? 100 और starting कितना है? 0. If C, K, F are temperature of body on the Celsius, Fahrenheit and Kelvin. Celsius, Fahrenheit and Kelvin. Scale respectively C upon 100, Fahrenheit minus 120
बाई 180, K माइनस 273 बाई 100। अब आते हैं डिजिटल थर्मोमीटर, आजकल ये बहुत यूज होने लगे हैं। इसमें आपको क्या है, इसमें जो पारा है वो रेज नहीं होता। जब आपका बॉडी टेम्परेचर आ जाता है, क्या होता है, इसमें एक बीप की आवाज बजने लगती है, उससे आपका बॉडी टेम्परेचर पता लग जाता है। Nowadays, digital thermometer are also used measure body temperature. They work in a tiny cells. Good quality digital thermometer record body temperature more actually than ordinary mercury in glass type of thermometer. फिर आते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। A laboratory thermometer is also made up of glass tube. It has a glass bulb with mercury which on gain heat, जिसको जैसे ही इसको हीट मिलेगी क्या होगा, इसकी जो मरकरी है वो रेज होने लगेगी। The ordinary laboratory thermometer is marked from 0 to 100. Some laboratory thermometer are marked measure -10 to 100 डिग्री। देखिए ये जो है रेज होने लगता है, यहाँ बल्ब है जिसमें मरकरी भरी होती है, जिसका आपका टेम्परेचर पता चल जाता है। हाउ विल यू रीड लेबोरेटरी थर्मोमीटर? अब आप इसे पढ़ेंगे कैसे कि आपने जो केमिकल गर्म किया है, जो भी सब्सटेंस गर्म किया है, उसका टेम्परेचर कितना है। A laboratory thermometer does not have constriction. It has to be read while it is contact with material whose temperature we can measure. For example, to record the temperature of warm water, the temperature has to be read while the thermometer is measured in the water. अब आप इसका टेम्परेचर किसी भी चीज़ का, पानी का या किसी भी केमिकल का तभी नाप पाएंगे जब आप उसे इस केमिकल में डिप करेंगे। जैसे ही आप इसे बाहर निकलेंगे ये नॉर्मल हो जाएगा। जब तक आप उसे इसमें पानी में, गर्म पानी या गर्म सॉल्यूशन में डिप करके रखेंगे, आप तुरंत इसका जो है टेम्परेचर मेजर करेंगे। सोल्जर इन कॉम्बाट कनेक्ट लाइट हीट fire to food. They use chemical reaction to generate heat. Magnesium and iron dust are mixed with salt. To activate the reaction, soldier add a little water to the mixture. Their reaction generate enough heat to boil. Now recapitulate an encyclopedia, read yourself. Now checkpoint time. Darken the correct option in OMR sheet. A laboratory thermometer does not have constriction. A thermoflask is silver to minimize by radiation, heat transfer by radiation. Normal human body temperature is 37 to 98. Heat causes expansion because to increase of movement of molecule. Now question B, filling in the blank. The hotness of an object is determined by its temperature. Temperature is measured in degree Celsius. Gases, liquid and solid expands on heating. The boiling point of water is 100 degree centigrade. ये centigrade तो लिखा हुआ है. And melting point is 0 degree centigrade. The unit of heat capacity is joule per Kelvin. Now question D, match the following. Freezing point of water 0 degree. Boiling point of water 100 degree. Normal temperature of human body 37 degree. Heat insulator air. Heat conductor आयरन। इंसुलेटर जो अच्छे से उसे इंसुलेट करते हैं, रोकते हैं, और हीट कंडक्टर जो रोकते हैं। नाउ टेक द करेक्ट ऑप्शन, pick right and wrong. All substance expands at the same rate when heated. False. Conduction occur in solid and liquid. True. Sun's energy reaches the earth atmosphere by conduction. False. Thermoflask is used to minimize heat transfer. True. Sea breeze and land breeze are caused by radiation. False. Now rest of the exercise, do it yourself, read this chapter. See you in your next class. Till then, bye bye.